हेलो एवरीवन, वेलकम इन ईबीसी चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। As you can see this structure, this is the ALS of the ovule, and each ovule is attached to the inner wall of the ovary, which we call placenta, by a slender stalk called funicle. This is the funicle, and the point of attachment of ovule to its funicle is called the hilum. Main body of the ovule is formed by inner central mass, that is the nucellus. Here you can see the nucellus, and it consists of living parenchymatous cells. In mature ovules, the nucellus serve to cover and provide nutrition to the embryo sac, which we call as the female gametophyte, and each ovule has two distinct ends, that is, one is the micropyle and another one is the chalical end, which is the posterior end and opposite to the micropylar end. The micropyle is also called the opening of the ovule. This micropyle is also called the opening of the ovule, and externally the nucellus is covered by one or two protective covers, which we called as the integuments. And these integuments, they arise from the chalical end. This is your chalical end, and these integuments, they arise from this chalical end. And when only one integument is present, the ovule is called unitegmic, and if the ovule consists of two integuments, then it is called the bitegmic. And in some plants such as Santalum, no integument conditions also present, and in mature ovules the female gametophyte or embryo sac is present in the center, and the embryo sac consists of egg cell, synergid cells, antipodal cells and polar nuclei. This we describe when we discuss about the formation of embryo sac. So just now we have discussed only the ALS of the ovule, the structure of the ovule. Now I will tell you there are different types of ovules. Here you can see these are the different types of ovules. In front of you, you can see the orthotropous ovule, anatropous ovule, hemitropous ovule, campylotropous ovule, amphitropous and circinotropous ovule. Now we will discuss one by one about these different types of ovule. So first of all, we start with this orthotropous ovule. On the basis of position of micropyle with respect to the function of funiculus, ovules are divided into the 6 types. यानी माइक्रोपाइल की पोजीशन और फ्यूनिकुलस पर बेस होकर ओव्यूल्स को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं,
जिसमें सबसे पहला हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल आता है, और ये आपका स्ट्रेट होता है, जहाँ पर आपका माइक्रोपाइल, आपका चैलिज़ल और आपका जो फ्यूनिकल है, ये सब सेम लाइन में होते हैं. एंड हियर दिस कंडीशन कैन बी सीन इन फैमिली पॉलीगोनेसी, जिसमें आप साइकस एग्जाम्पल दे सकते हैं. नेक्स्ट आप एनाट्रोपस ओव्यूल देख रहे हो. ये कॉमन अकरेंस है, और इस ओव्यूल में जो फ्यूनिकल होता है वो लॉन्ग होता है, एंड होल बॉडी जो होती है ओव्यूल की वो कैसी होती है, इन्वर्टेड 180 डिग्री. एज अ रिजल्ट the micropyle comes close to the funicle, and this you can see in most commonly in dicots and monocots. Next ovule is the hemitropous ovule. In this case the body of the ovule is inverted only through 90 degree, and as a result the funicle comes to lie at right angle to the nucellus. Micropyle and chalizzle lie in the same plane, and here you can give example in Ranunculus family. Next type of ovule is the campylotropous ovule, when body of the ovule is not completely inverted but it is bent like horseshoe. जैसे horse shoe structure होता है, ये बिल्कुल आपको इसी तरीके से बैंड पोजीशन दिखाई देती है. एंड द माइक्रोपाइल एंड चैलिज़ल डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन. इन दिस यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ क्रूसिफेरी फैमिली. दिस इज सीन इन द फैमिली ऑफ क्रूसिफेरी. नेक्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल इज द एम्फीट्रोपस ओव्यूल. इट इज सिमिलर टू कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, but in this case the nucellus embryo sac is also bent like horseshoe. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कैम्पाइलोट्रोपस में हमने देखा था. और यहाँ फैमिली आपकी आती है एल्समेसिया. एंड द लास्ट टाइप ऑफ ओव्यूल सिर्सिनोट्रोपस. सो इट इज़ ऑफ वेरी रेयर अकरेंस. ये बहुत ही रेयरली आपको नज़र आता है. एंड हियर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज बेंट थ्रू 360 डिग्री so that it takes a one complete turn, and this condition you can see in case of the Opuntia. So these are the different types of ovule, the 6 types of ovule which you can see on the basis of position of micropyle with respect to the funiculus. Now we will discuss about the formation of the female gametophyte, which we call as the embryo sac. Female gametophyte is also called the embryo sac. This is the embryo. You can clearly see, and it develops from megaspore. There are great variations in the development of embryo sac. Some are monosporic, some others are biosporic, and rest others are tetrasporic. जिसमें आपको कुछ मोनोस्पोरिक नज़र आएंगे, कुछ बायोस्पोरिक होते हैं, कुछ टेट्रास्पोरिक आपको नज़र आते हैं, और कुछ मोस्ट कॉमन अकरेंस एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है. अब यहाँ पर जो रिमेनिंग मेगास्पोर्स होते हैं ओव्यूल में, वो कुछ सफिशिएंट नरिशमेंट देते हैं
जिससे कि उसका साइज़ जो होता है वो लार्ज हो जाता है। और फिर ये मेगास्पोर डिवाइड होता है 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीज़न में, जिससे कि 8 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। और ये सारे न्यूक्लियस आपके हैप्लॉइड होते हैं। और माइटोटिक डिवीज़न जो होती है वो फ्री न्यूक्लियर होती है। इसका मतलब वहाँ पर जो न्यूक्लियर डिवीज़न होती है वो इमीडिएटली फॉलो करती है सेल वॉल की फॉर्मेशन। यानी सबसे पहले जो प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, एक आपका हैप्लॉइड मेगास्पोर होगा जिससे कि 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, 2 से फिर 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, और उसके बाद 4 से आपके 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। एंड आउट ऑफ दिस 8 न्यूक्लियाई, अब इसी 8 न्यूक्लियाई से आपके जो 3 न्यूक्लियाई हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं, और ये साइटोकाइनेसिस में जाते हैं। यानी यहाँ पर सेल वॉल फॉर्म होगी और फिर एग एपरेटस फॉर्म होगा। ओके, एंड एग एपरेटस में फिर आपके सिनर्जिड्स होते हैं। हियर यू कैन सी दीज आर द सिनर्जिड्स। और एक आपको एग सेल मिलता है। एंड एग सेल रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमीट। और जो आपके 3 न्यूक्लियाई होते हैं चैलिजल एंड पर, जो आपका चैलिजल एंड होता है वहाँ पर जो आपके 3 न्यूक्लियाई होते हैं ये भी साइटोकाइनेसिस में जाते हैं। और फिर इनसे आपके क्या बनते हैं, ये 3 आपके एंटीपोडल सेल्स बनते हैं। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई आपके सेंटर में होते हैं और इनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती। दैट इज़ ये आपके क्या बनाते हैं, ये आपका फिर सेंट्रल और ये सेंट्रल सेल और आपके पोलर न्यूक्लियाई बना देते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका एम्ब्रियो सैक कहलाता है, जो कि एक मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट है। और नॉर्मली अगर हम देखें तो इसमें 3+2+3 का एक अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियाई का, जो कि एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक कहलाता है। और मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट में आपका 8 न्यूक्लियाई होता है, बट केवल उसमें 7 सेल्स होते हैं। 7 सेल्स से मतलब वहाँ पर आपका एक एग सेल होगा। ठीक है, ये जो आपका एक एग सेल है इसमें आपके 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और एक आपका रिमेनिंग सेल होता है, और बाकी आपके ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो जो सिनर्जिड्स होते हैं, ओके, ये जो आपके सिनर्जिड्स हैं ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल के। एंड वन ऑफ ईच साइड ऑफ द ओव्यूल ये आपके फिलीफॉर्म एपरेटस भी बनाते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस आप सबसे लास्ट में देख सकते हो, यहाँ पर ये आपके फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। Actually, it is a mass of finger-like projections which are present in the synergid cells, and these projections are in growth of the cell wall, and these are rich in polysaccharides also, and each projection is provided with a set of microfibrils, and they are supposed to develop due to this you can say some chemotactic stimulus, and they also help in short distance transport of nutrient across the synergid wall. ये जो आपके सिनर्जिड्स होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में, और ये सिक्रीट करते हैं कुछ कीमोट्रॉपिकली एक्टिव सब्सटेंस। और जो आपका डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब को, ताकि वो डिस्चार्ज करें और रिलीज करें अपना कंटेंट एम्ब्रियो सैक में। ओके, इसके बाद जो आपको ये एंटीपोडल्स मैंने बताए ये एक्चुअली 3 होते हैं नंबर में, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें चैलेजल एंड पर एम्ब्रियो सैक के। और ये एग्जिबिट करते हैं ग्रेट वेरिएशन साइज का, स्ट्रक्चर का, लाइफ स्पेन और बायोकेमिस्ट्री। एंड यूजुअली these cells they degenerate before
soon after fertilization. Antipodal cells आपको प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन. ओके. एंड दिस एग सेल, ये जो आपका एग सेल है, ये सिंगल हैप्लॉइड सेल होता है जो माइक्रोपाइलर एंड पर होता है 2 सिनर्जिड्स के बीच में, और ये फीमेल आपका गैमीट रिप्रेजेंट करता है. एंड ये आपका जब स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइज होने के बाद ये डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द embryo sac, the structure of the female gametophyte. Okay, so today in this video we learned about the structure of the ovule, types of ovule. These are the types of ovule which we have discussed, and we discuss about the formation of the female gametophyte. I hope now you understand all these things which we have discussed in this video. So don't forget to like, share and subscribe the channel, and take care yourself. Thank you.